as we heard from the memory verse that we should keep our heart with all diligence. और जैसे हमने आज के मेमोरी वर्स से सुना कि हमें अपने मन की, अपने हृदय की पूरे प्रयत्न करके उसकी रक्षा करनी है. So one sin which many times can come into our heart is the sin of pride. और एक पाप जो कई बार हमारे हृदय में आ सकता है वो है घमंड का पाप. And we need to be alert to the thought of pride when it comes creeps in our heart. और जब कोई घमंड से भरा विचार हमारे हृदय में बस आता ही है तो हमें उसके प्रति बहुत सावधान होना है. And we need to like cast it out immediately. और हमें तुरंत उसे निकालना है. And that we can do only when we are very cooperative with the voice of the Holy Spirit. और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा की आवाज के साथ बहुत ज्यादा हम उसका सहयोग देते हो तब. Then we can be sensitive to any thought of pride which comes to us. तब हम घमंड के किसी भी विचार के प्रति बहुत संवेदनशील हो सकते हैं जो विचार हमें आता है. Because we know that the first sin which entered the universe is the sin of pride. क्योंकि हम जानते हैं पहला पाप जो इस विश्व में कभी जिसने प्रवेश किया वो घमंड का पाप था. We know how in the heavens, the angel Lucifer became a devil. हम जानते हैं कैसे स्वर्ग में वो जो स्वर्गदूत लूसीफर था वो शैतान बन गया. We read that in Isaiah chapter 14, 12 to 15. हम यशायाह 14 उसके 12 से 15 में से पढ़ते हैं. It says, "How have you fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn? You have been cut off down to the earth, you who weakened the earth." Then it says in verse 13, you can read from verse 13. और 13 वचन से, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा. Then in verse 14, और 14 वचन, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा. so here it says that he said in his heart. और यहाँ लिखा है कि तूने अपने मन में ये कहा. So there is a pride in our heart which can come in our thoughts. और हमारे हृदय में एक घमंड होता है जो हमारे विचारों में आ सकता है. And it says many times here, it says, I will, I will, I will, I will. और यहाँ कई बार लिखा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा. So every time I have a heart, in my heart I have something which I say, I will do this, I will achieve this, I will do that, I will do this. That is a cry of pride, of self-confidence in my heart. और इसलिए जब कभी मेरे हृदय में ऐसा विचार आता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये हासिल करने वाला हूं, मैं आगे ये करने वाला हूं, तो ये हमारे हृदय से एक घमंड की एक पुकार है जो आ रही है. So as it says in James that when we say that I will go there, do business, I will make money, I will be rich, I will do that, that is also a sense of pride in us. और इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं वहां जाकर व्यापार करके इतने इतने पैसे कमाऊंगा, ये भी एक घमंड का हमारे अंदर एक तरीका हो सकता है. Because it says that what is your life? It is just a vapor that we do not know what will happen tomorrow. क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है और तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है. So that is the sense of pride which Lucifer had when he was in heaven. और इस प्रकार का एक घमंड लूसीफर में था जब वो स्वर्ग में था. We also read of it in Ezekiel chapter 28, 14 and 14. और हम इसको यहेजकेल 28 के 14 में भी पढ़ते हैं. It says you are the anointed cherub. और वहां लिखा है तू अभिषिक्त करूब था. And then in verse 17 it says your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom by reason of your splendor. और 17 वचन में लिखा है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी. So here he was a angel of God who was supposed to look at God and worship him. यहाँ वो एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था और उसका काम था कि वो परमेश्वर की ओर देखे और उसकी आराधना करे. And lead other people, other angels in worship of God. और दूसरे स्वर्गदूतों की वो अगुवाई करे परमेश्वर की आराधना में. But instead of focusing on God and how great God is, he started focusing on his own beauty. पर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के बजाय और इस पर ध्यान लगाने के बजाय कि परमेश्वर कितना महान है, वो अपने ही सुंदरता को निहारने लगा.
and his heart was lifted up, it says, because of beauty. और उसका हृदय जो है वो फूल उठा या ऊंचा हो गया अपने सुंदरता की वजह से। Then it also talks about his wisdom. I think because of wisdom also he became very proud. और उसके बुद्धि के विषय में भी लिखा है, मुझे लगता है उसके बुद्धि से भी वो बहुत घमंडी बन गया। So it was all a gift which God had given him. He did not have anything because God is the one who created him. और ये सारे वो वरदान थे जो परमेश्वर ने उन्हें उसे दिए थे, उसके पास खुद तो कुछ नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसका निर्माण किया था। So whenever I get thoughts about my achievements and what I did, और इसलिए जब कभी मेरे अंदर विचार आता है मेरी जो जो कुछ मैंने हासिल किया है, जो कुछ मेरी सिद्धियां है, I need to remember that it is God who gave me the ability. मुझे ये याद रखना है कि परमेश्वर है जिसने मुझे वो क्षमता दी है। He made me and he created me into this world. उसने मुझे बनाया और उसी ने मुझे इस संसार में मेरी सृष्टि की। And everything I have is a gift which he has given me. और जो कुछ मेरे पास है ये एक वरदान है जो उसने मुझे दिया है। And I cannot boast about anything. और इसलिए मैं किसी भी बात के विषय में घमंड नहीं कर सकता। I cannot compare myself with someone else and think that I am better. मैं अपनी तुलना किसी और के साथ करके ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी से बेहतर हूं। So that is why when Jesus came to earth, इसी वजह से जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, he came in the exact opposite way of Lucifer. वो लूसीफर की बिल्कुल विपरीत तरीके से, बिल्कुल विपरीत मार्ग में वो आया। So when Lucifer was continuously thinking, I will go up, I will rise above, I will become like God. He was trying to go up, up, up. और जब लूसीफर निरंतर यही सोचता था कि मैं ऊंचा उठूंगा, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं और ऊंचा जाऊंगा, वो निरंतर ऊपर 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 उठने की और ऊपर चढ़ने की सोच रहा था। But salvation from sin came through Jesus, who said, I will come down, I will go down, down, down. पर पाप से उद्धार यीशु के द्वारा आया, जो निरंतर कहता था कि मैं नीचे नीचे और नीचे जाऊंगा। We read in Philippians chapter 2 from verse 3. हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन से आगे पढ़ते हैं। It says, do nothing from selfish or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourself. वहां लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। This is a very wonderful verse which we can meditate on. ये एक बहुत ही सुंदर वचन है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। That I should do nothing from selfishness or pride. कि मुझे स्वार्थीपन से या घमंड से कुछ भी नहीं करना है। But I should consider others as more important than me. पर मुझे दूसरों को अपने आप से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है। And this also we can understand when we look closely at the life of Jesus. और इस बात को भी हम तब समझ सकते हैं जब हम यीशु के जीवन को और नजदीक से देखेंगे। It says in verse 5, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. और 5वां वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। So that is the first thing, that he did not even grab on to his position as God of the universe. और ये पहली बात है कि इस पूरे विश्व के परमेश्वर होने के नाते भी उसका जो स्थान था उसे पकड़े रहने के लिए, उसको उस पद को छीनने के लिए उसकी कोई ऐसी कोशिश नहीं थी। See, he was God from all eternity. वो अनंत काल से परमेश्वर था। Even when he came on earth, he was God. जब वो इस पृथ्वी पर आया तब भी वो परमेश्वर था। But he did not find it necessary that he should be in that place and control the whole universe and assert his authority as God all the time. पर उसने ये आवश्यक नहीं समझा कि वो उसी स्थान पर रहकर इस पूरे विश्व पर नियंत्रण करके अपने ही अधिकार को जमाते रहे, उसने ये नहीं सोचा। He gave up that equality with God in that manner, and he gave up the glory which he had as God of the universe, and he came down and he came as a small babe, helpless babe. और परमेश्वर के साथ जो उसकी समानता थी और उसकी जो महिमा थी, उन दोनों चीजों को उसने छोड़कर वो परमेश्वर होकर एक बिल्कुल असहाय बच्चे के समान इस पृथ्वी पर आया।
So that is something we need to meditate much in our life. और ये ऐसा कुछ है जिस पर हमें बहुत अधिक मनन करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, So that we understand the humility of God and the humility of Jesus. ताकि हम परमेश्वर की नम्रता और यीशु की नम्रता को समझ पाए। And he emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in likeness of man. और उसने अपने आप को इस प्रकार खाली किया, अपने आप को इस प्रकार शून्य किया, एक दास का स्वरूप उसने धारण किया। See, even as a man, he again humbled himself and became a slave. मनुष्य होने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र करके वो एक दास या गुलाम बना। So I was thinking that in Nazareth, he lived as an ordinary carpenter. और मैं सोच रहा था नासरत में वो एक आम बढ़ई के समान जिया। So he knew the scriptures from a very young age, as we know. हम जानते हैं कि बहुत ही एक छोटे उम्र से वो वचनों को अच्छे से जानता था। He could have gone out and started preaching from a very small age. बहुत ही छोटी उम्र में ही वो बाहर जाकर प्रचार करना आरंभ कर सकता था। But he did not do that according to his own initiative. पर अपनी ही पहल लेकर उसने जाकर ये करना शुरू नहीं किया। He was just happy to be at home and do the work of a carpenter in that small village of Nazareth. वो घर पर रहकर ही उस बढ़ाई का काम करने में, एक उस नासरत जैसे एक छोटे गांव में रहने में ही वो संतुष्ट था। And people knew him as a carpenter. और लोग उसे केवल एक बढ़ाई के तौर पर ही जानते थे। He did not like show himself something great or very big something where people would understand that he is something special. और उसने कभी अपने आप को बहुत ही महान या वो दूसरों से बड़ा है ऐसी कोई छवि बनाने की कोशिश नहीं की, या ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो कोई विशेष है। You can imagine the God of this universe is just living in Nazareth as a simple man and nobody knows him. हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे विश्व का जो परमेश्वर है वो एक नासरत जैसे साधारण गांव में जी रहा है और जहां कोई भी उसे नहीं जानता। And then it says he in verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. और 8वें वचन में लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को उसने सह लिया। Even the death on the cross, on a cross. हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। So he was ready to humble himself and become a criminal also, to like appear like a criminal also, to die on that cross. और उसने अपने आप को इस प्रकार नम्र किया कि वो एक अपराधी के जैसे भी दिखने के लिए तैयार था और उस क्रूस पर मरने के लिए वो तैयार था। And that is the Jesus we follow. और ये वो यीशु है जिसके अनुसरण हम करते हैं। He did not stop being humble in his lifetime. उसके जीवन काल में उसने कभी भी नम्र होना छोड़ नहीं दिया या रोक नहीं दिया। Till the point of death, he continued the way of humility. उसके मृत्यु तक वो उस नम्रता के मार्ग में ही चलते रहा। So he is our example and he's the one we follow. और वो हमारा उदाहरण है और वो है जिसके पीछे हम चलते, जिसका अनुसरण हम करते हैं। We don't humble ourselves one day and after some time when God blesses us, we suddenly think something of ourselves. और हम इसलिए अपने आप को एक दिन नम्र करके बाद में जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम अपने आप को कुछ विशेष नहीं समझने लगते। We continue the way of humility looking at Jesus. हम उस नम्रता के मार्ग में जारी रहते हैं यीशु की ओर देखते हुए। In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, we read this. मत्ती 11 उसके 28 से 30 में हम पढ़ते हैं, Says, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। For my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। So what is it that Jesus wants us to learn from him? और फिर वो क्या है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीखें? Jesus said, "I am gentle and humble in heart." और यीशु ने कहा, मैं नम्र और मन में दीन या सौम्य हूँ। So he is not talking about an external humility. और वो किसी बाहरी नम्रता के बारे में बात नहीं कर रहा।
where I become humble when I come to church and speak very meekly to my brothers. जहां जब मैं कलीसिया में आता हूं, मैं बहुत नम्र होकर मेरे सारे भाइयों के साथ बड़ी दीनता से पेश आता हूं। That is not the humility of Jesus. ये यीशु की नम्रता नहीं है। The humility of Jesus is the humility in my heart. यीशु की नम्रता वो है जो मेरे हृदय में है। So I want the life of Jesus inside me, not just external acting of humility. और इसलिए मैं चाहता हूं कि यीशु का जीवन मेरे अंदर हो, केवल बाहरी कोई नम्रता का दिखावा ना हो। That the humility in my thoughts and in my attitudes and in the dealings I do with people at home. वो नम्रता जो मेरे विचारों में, मेरे रवैयों में और घर में जो लोगों के साथ मेरा बर्ताव है उसमें हो। So we cannot manufacture that humility. We have to learn it from Jesus. और हम इस नम्रता को अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते, हमें इसको यीशु से सीखना है। So we need to ask the Holy Spirit to enlighten our hearts to see the humility of Jesus in every situation. और हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, मांगना है कि वो हमारे हृदय में प्रकाशन दे, ताकि हम हर परिस्थिति में यीशु की नम्रता को देख पाए। So as I said, he was just a carpenter in Nazareth. और जैसे मैंने कहा, वो नासरत में केवल एक बढ़ई मात्र था। We know that he knew the scriptures at the age of 12. हम जानते हैं कि 12 साल की उम्र में वो बाइबल को, वचनों को अच्छे से जानता था। But what was he doing from the age of 12 till the age of 30? फिर 12 से लेकर 30 साल की उम्र तक वो क्या कर रहा था? We read in Luke chapter 2 verse 51 हम लूका 2 उसके 51 में पढ़ते हैं that he lived in subjection to his father and mother. कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा। So this is such a difficult thing, especially for teenagers from the age of when Jesus was age of 13, 14, 15, 16. Such a difficult thing for teenagers to be in subjection to their parents. और जो टीनेजर्स होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत कठिन होता है 13, 14, 15, 16 साल की उम्र के बच्चों को कि अपने माता पिता के अधीन वो रहे। So there Jesus showed the path of humility where he humbled himself and he submitted to his parents. और यहाँ यीशु मसीह ने हमें नम्रता का वो मार्ग दिखाया कि उसने अपने आप को नम्र किया और वो अपने माता पिता के अधीन रहा। And Jesus was much more spiritual and much more had much more wisdom than his parents. और यीशु ज्यादा बुद्धिमान था और अपने माता पिता से ज्यादा वो आत्मिक था। And he knew more word of God than his parents. और उसके माता पिता से ज्यादा वो परमेश्वर के वचन को जानता था। But that did not stop him from being subject to them. पर इन बातों ने यीशु को उनके अधीन होने से नहीं रोका। Because he knew that his father's will is that he should live in subjection to his father and mother. क्योंकि वो जानता था कि उसकी पिता की यही इच्छा है कि वो अपने माता पिता के अधीनता में रहे। So we cannot learn humility without being in subjection to authority. और अगर हम अधिकार के अधीन न रहे तो फिर हम नम्रता को नहीं सीख सकते। So if I'm not in subjection at home, like it says, husband and wife should be in subjection to each other. अगर मैं अपने घर में अधीनता में नहीं जी रहा, जैसे लिखा है कि पति पत्नियों को घर में एक दूसरे के अधीन होकर जीना है। If children are not subject to their parents and live in obedience to their parents. और अगर बच्चे अपने माता पिता के अधीन नहीं है और अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में वो नहीं जीते तो We will not be humble. We are not humble. फिर हम नम्र नहीं होते। And we will not receive grace to overcome sin. और हम अनुग्रह नहीं पाएंगे पाप पर विजय पाने के लिए। Then as a young person, I may be struggling with sin. फिर एक जवान व्यक्ति होने के नाते मैं पाप से ही संघर्ष करते रहूंगा। And I will say, Lord, give me grace, give me grace, give me grace. और मैं कहते रहूंगा कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। But if you are not subject to your father and mother at home, God will not give you grace to overcome sin. पर अगर अपने घर में आप आपके माता पिता के अधीन नहीं हो तो परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देगा पाप पर जयवंत होने के लिए। So that is the first thing we need to learn as children to obey our parents. और ये पहली बात है जो हमें सीखनी है बच्चे होने के नाते कि हम अपने माता पिता की बात माने, आज्ञा माने। So because it is in the last days, there is a spirit of disobedience among the children around the world. क्योंकि अंतिम दिनों में पूरे संसार में अनाज्ञाकारिता की एक आत्मा बच्चों में है।
not only in children but also at home between husband and wife. केवल बच्चों में ही नहीं पर परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में भी। There is no submission between husband and wife to the husband. और पत्नी का पति के प्रति कोई भी अधीनता उसकी नहीं है। And we know that it's a world where they say that we should be independent and we should not be in subjection to anyone. और हम जानते हैं कि एक ऐसा संसार है जहां कहा जाता है कि हमें स्वतंत्र होना है, आजाद होना है और किसी के भी अधीन नहीं होना है। And that is why in 2 Timothy chapter 3 verse 1 it says, but realize this, that in the last days difficult times will come. इसी वजह से दूसरा तिमुथियुस 3:1 में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। And most of the sin listed there is the root cause of that sin is pride. और वहां जो अधिकतर पाप लिखे हैं उन सारे पापों की जड़ अगर हम देखें तो वो घमंड है। Like lovers of self, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossip, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited. So all these are rooted in a heart of pride. और दूसरे वचन से आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, ये सारे जो है घमंड की वजह से आते हैं। And having all these qualities, they still have a form of godliness. और इन सारे गुणों को रखकर भी उनके पास भक्ति का वो भेष धरे हुए है। But they will not have the power from God. पर उनके पास परमेश्वर द्वारा आने वाली सामर्थ नहीं होगी। Because they have not humbled themselves. क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र नहीं किया है। And that is why in these days we need to learn more and more of the humility of Jesus. और इसी वजह से इन दिनों में हमें अधिक और अधिक यीशु की नम्रता को सीखने की आवश्यकता है। And it says in Matthew chapter 12 verse 15. और मत्ती 12 उसके 15 में ये लिखा है that he healed many people. कि उसने कईयों को चंगा किया। And then in verse 16 it says, and warned them not to tell who he was. और 16 वचन कहता है कि उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। So Jesus had this nature in him that wanted to keep himself hidden. और यीशु के अंदर ये स्वभाव था कि वो अपने आप को छिपा हुआ रखना चाहता था। So he would do some good to many people and he would just tell them, don't tell anybody about it. और वो कई लोगों के लिए भलाई करता था और फिर वो उनसे कहता था कि तुम किसी और को इस विषय में मत बताओ। So that shows the humility of Jesus in his life. और ये यीशु की अपने जीवन की नम्रता को दिखाता है। And verse 18 of the same chapter says, behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. और उसी अध्याय का 18 वचन कहता है, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। I'll put my spirit upon him. मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। So that is the spirit, Holy Spirit inside us that keeps us humble. और यही पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें नम्र रखता है। That does not want to glorify ourselves before others. जो दूसरों के सामने अपने आप को महिमा नहीं लाना चाहता। It wants always to glorify Jesus and draw everyone to Jesus. वो चाहता है निरंतर यीशु की महिमा करे और सब लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करे। For Jesus it was always pointing to the Father. यीशु के लिए ये था कि वो निरंतर पिता की ओर लोगों को ले जाता। And then in verse 19 it says, he will not quarrel, not cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. और 19 वचन कहता है वो न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। So that is the Jesus we follow, who does not want to be shown on a camera always, people holding cameras and looking at him like a superhero. और ये यीशु है जिसका हम अनुसरण करते हैं, जो ये नहीं चाहता था कि निरंतर लोग उसके ओर देखें, उसके ओर अपने कैमरास रखकर किसी सुपर हीरो के समान, किसी नायक के समान वो घूमे। Because we see so much of that boasting even in Christian work today. क्योंकि हम इस घमंड के काफी मात्रा आज के मसीह काम में भी देखते हैं। And people always want to be in front of the camera to show whatever they are doing. और लोग हमेशा उस कैमरा के सामने होना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। And always we are so much aware of how many likes and how many views we are getting,
so that we can be famous in the world. और हमेशा हमारा ध्यान इसी पर है कि हमें कितनी लाइक्स मिल रही है, कितने व्यूज मिल रहे हैं, ताकि इस संसार में हमारी लोकप्रियता जो है वो बढ़ते जाए। So we need to judge ourselves in this area that am I seeking for popularity? और इस क्षेत्र में हमें अपने आप का न्याय करने की आवश्यकता है कि क्या मैं प्रसिद्धि की खोज कर रहा हूं। This is something which I also have faced, and God was asking me to cleanse myself from this. That's why I'm sharing. और ये ऐसा कुछ है जिसका सामना मैंने खुद किया है, और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैं अपने आप को इससे शुद्ध कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बांट रहा हूं। And it is something which is which we know that now because of social media and all, people want to be always well known among people. और ये ऐसा कुछ है क्योंकि हम जानते हैं आज सोशल मीडिया के द्वारा लोग हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों के बीच वो जाने माने हो। It is the spirit of the world which is the pride of life. ये संसार की आत्मा है जो जीवन का घमंड है। Any of our talents, we just want to show it before the world and gain their honor. हमारे कोई भी गुण या टैलेंट्स क्यों ना हो, हम केवल उनको संसार के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं और उनसे आदर प्राप्त करना चाहते हैं। It is not the spirit of Jesus. ये यीशु की आत्मा नहीं है। So we need to look at Jesus from the Gospels and to follow that Jesus. और इसलिए हमें सुसमाचारों से यीशु को देखना है और उस यीशु के पीछे चलना है। And his ministry was not where he sought people to do things for him. और उसकी सेवका ये नहीं थी जहां उसने लोगों को, उसने ये खोज की कि लोग उसके लिए कुछ करें। He said, I did not come to be served but to serve. उसने कहा मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। And to give my life as a ransom for many people. और मैं अपने जीवन को कई लोगों की उनको छुटकारा देने के लिए आया हूं। So am I seeking to that people should do something for me and people should respect me, honor me, or am I giving myself to people? और इसलिए क्या मैं ये देख रहा हूं कि लोग मेरे लिए कुछ करें, मेरा आदर करें, मेरा सम्मान करें, या मैं इसकी खोज कर रहा हूं कि मैं लोगों को कुछ दूं। In Mark 6:31, in the brackets it says, for there were he asked his disciples to go to a secluded place and rest for a while. मरकुस 6 उसके 31 में लिखा है कि उसने अपने शिष्यों को अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करने को कहा। And then it says in the brackets, for there were many people coming and going and they did not even have time to eat. और उसके आगे लिखा है ब्रैकेट्स में कि क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। This is not only the only time. Many times Jesus had to skip meals because he was serving people. ये कोई इकलौता समय नहीं था जहां ये हुआ, ये कई बार ऐसा हुआ कि यीशु को अपना खाना छोड़ना पड़ा क्योंकि वो लोगों की सेवा कर रहा था। And it was to such an extent that his relatives thought he was going mad. और ये इस मात्रा तक, इस सीमा तक बढ़ चुका था कि लोग, उसके रिश्तेदार सोचने लगे कि ये पागल हो गया है। So that is the way Jesus was serving others. और ये वो मार्ग या तरीका है जिससे यीशु जैसे यीशु दूसरों की सेवा करता था। He was not like a big Maharaja and everybody looking at him and like film star or something, and everybody focused spotlight on him walking around. वो कोई बड़े महाराजा के समान नहीं था जहां सब लोग उसी की ओर देख रहे हैं, या कोई फिल्म स्टार नहीं था जहां उसके ऊपर कोई स्पॉटलाइट है और सब लोगों का ध्यान उसी पर केंद्रित है। He was this selfless life of Jesus that did not care about his needs but just kept giving himself for others. पर वो ये निस्वार्थ जीवन वाला व्यक्ति था जो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके केवल अपने आप को दूसरों के लिए देते रहा। And then in verse 33 it says, people saw them going and many recognized them and ran there together on foot from all cities and got there ahead of them. और 33 वचन कहता है बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। So here we see that Jesus just wanted some time, some privacy time for his disciples to take some rest, but here the people are not allowing that. और यहाँ हम देखते हैं यीशु केवल ये चाहता था कि अपने शिष्यों के लिए थोड़ा एकांत में उन्हें समय मिले, पर लोग इसकी भी अनुमति नहीं दे रहे थे। And there again we see in verse 34, he saw a large crowd and he felt compassion for them. और फिर एक बार हम 34 वचन में देखते हैं उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया।
So we need to understand this heart of Jesus, that he did not get angry on those people, और हमें यीशु के इस हृदय को समझना है कि वो उन लोगों पर गुस्सा नहीं हुआ, but he felt compassion on his people, पर उसने उन लोगों पर तरस खाया, because he had come to serve those people. क्योंकि वो उन लोगों की सेवा करने आया था। See, if he had come with the spirit of a master, that I am the king here, then he would definitely get angry on those people. अगर वो एक स्वामी की आत्मा लेकर आता, ये सोचते हुए कि मैं यहाँ एक राजा हूँ, फिर वो जरूर उन लोगों पर क्रोधित होता। But here he has come as a slave to serve those people, so he's not getting angry when people are taking advantage or just keeping on coming. पर यहाँ वो एक दास होकर, एक गुलाम होकर आया था, इसलिए वो गुस्सा नहीं हुआ जब लोग आते ही रहे और उसका फायदा उठाते रहे। In verse 45, it says, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida. और 45 वचन में फिर लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए। And while he was sending the crowd away, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। and then after bidding, so I'm just thinking of Jesus was not coming there preaching and just like we see now, just going away without meeting anyone. और मैं यही सोच रहा था कि यीशु वहां केवल प्रचार करने के लिए नहीं आया, और जैसे हम आज देखते हैं प्रचार करके बिना किसी से मिले तुरंत वो वहां से चले नहीं गया। He waited there and he was talking to people until everybody, there were a crowd of 5,000 people and so many people and women and children, and he sent everybody away, and he was patient enough to wait and talk to them, and then he went. और वो वहां रुका हुआ था और वो लोगों से बात कर रहा था, और वहां 5,000 लोगों की भीड़ थी, और वहां स्त्रियां और बच्चे भी थे, पर उसके बावजूद वो बिल्कुल धीरज से वहां रुककर उनसे बात करके उनको विदा करने तक वो वहां रुका था। So that is the Jesus we need to see with our eyes. ये वो यीशु है जिसे हमें अपनी आंखों से देखना है। He did not receive any honor from people. उसने लोगों से कोई भी आदर प्राप्त नहीं किया। He did not seek after that. उसने उस आदर का खोज नहीं किया। In John 5:34 it says, I receive, but the testimony I receive is not from man. और यूहन्ना 5:34 में लिखा है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। In verse 41 it says, I do not receive glory from men. 41 वचन में लिखा है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। So that is his life, that he never sought that somebody should say something good about him. और ये उसका जीवन है कि उसने कभी नहीं चाहा कि कोई उसके विषय में कुछ अच्छा या भला कहे। After doing so much miracles, after healing so many people, after sharing so much of wonderful messages from God, he did not seek that somebody should come and glorify him. इतने चमत्कार, इतने चंगाई करने के बाद, इतने बार परमेश्वर का वचन बांटने के बाद, उसने कभी नहीं चाहा कि लोग आकर उसकी महिमा करें। And in verse John 8:18 it says that it is the Father who testifies about me. और यूहन्ना 8:18 में लिखा है कि पिता है जो मेरी गवाही देता है। So that is what Jesus was seeking. He was seeking the testimony of his Father. और यही यीशु खोज रहा था, वो अपने पिता की गवाही को खोज रहा था। And in verse 28 it says, I can do nothing of my own initiative. और 28 वचन में लिखा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। And he did not do anything because he felt like doing something. उसने कुछ भी इस वजह से नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि उसे ये करना चाहिए। He always waited for his father to say something and then he did. वो निरंतर रुका हुआ था कि उसका पिता उससे कुछ कहे और फिर वो बातों को करता रहा। We know that he humbled himself till the point of death. हम जानते हैं कि उसने मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। On the previous night before they were going to catch Jesus, he was at the feet of his disciples washing their feet. और उसके पहले रात में जब वो पकड़वाने के पहले वो अपने शिष्यों के पांव धो रहा था। And I was just thinking that washing 12 disciples 24 feet, he did it with full of his heart and with full humility in his heart he did it. और मैं सोच रहा था कि 12 शिष्यों के पैर धोना मतलब 24 पांव को धोना अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी नम्रता के साथ उसने इस बात को किया।
and that is he was not doing any show or something which to impress them of his humility. और वो कुछ दिखावा नहीं कर रहा था, वो अपनी नम्रता से लोगों पर उसके शिष्यों पर कोई छवि नहीं बनाना चाहता था। He was just doing the work of a slave as their feet were dirty, and he just wanted to do that slave work for them. वो केवल एक गुलाम का काम कर रहा था क्योंकि उनके पांव गंदे थे, और एक गुलाम के समान वो ये काम करना चाहता था। And I need to get that spirit that I should not never think that I am above anyone, that I cannot do something for someone. और मेरे अंदर भी यही मनोभाव होना चाहिए कि मैं कभी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझता, कि मैं ये काम किसी के लिए नहीं कर सकता। So I should not come in the church and say that I'm somebody great, so I can order somebody to do something here or there. और इसलिए मुझे कलीसिया में आकर ये नहीं सोचना है कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं और मैं किसी को ऑर्डर कर सकता हूं, ये आज्ञा दे सकता हूं कि ये करे या वो करे। Especially when we deal with people who are poorer than us, we should not have that spirit. विशेषकर जब हम उन लोगों से बर्ताव करते हैं जो हमसे गरीब है, हमारे अंदर ये आत्मा नहीं होनी चाहिए। It is the filthy spirit of the world. ये इस संसार की गंदी आत्मा है। We don't judge people according to their standard of living. हम लोगों को उनके जो रहने का स्तर है उसके हिसाब से उनका न्याय नहीं करते। We are not partial and speak to people respectfully because they are from big families and rich families, and we speak very casually with people who are from poor families. That is not how church is built. और हम ये पक्षपात नहीं करते कि जब हम देखते हैं कि कोई लोग ऊंचे या बड़े घरों से है, अमीर है, उनसे हम अलग तरीके से बात करते हैं, और जब हम देखते हैं कि कोई लोग बहुत गरीब हैं, उनसे हम बहुत ही सहजता से या कम आदर से बात करते हैं। इस प्रकार कलीसिया का निर्माण नहीं होता। And at his last moment when he was crucified on the cross, we see the humility of Jesus there also. और उसके आखिरी पल में जब यीशु को उस क्रूस पर चढ़ाया गया, हम यीशु की नम्रता को वहां भी देखते हैं। In Isaiah 53:7 it says, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers. He did not open his mouth. और यशायाह 53:7 में लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। In 1 Peter 2:21-23, we are called to follow this example of Jesus. पहला पत्रस 2:21 से 23 में हमें यीशु के इस उदाहरण के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। In verse 23 it says, while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. और 23 वचन कहता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमका नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। So he at that time he was not threatening those people. और उस समय वो उन लोगों को धमकी नहीं दे रहा था। Nor was he inside his heart feeling self pity on himself also. और ना ही अपने हृदय के अंदर वो अपने आप पर ही तरस नहीं खा रहा था। But he said, "Oh Father, you know everything. I just submit myself in your hands. You are the controller of everything. So I just give myself to you." और उसने कहा, हे पिता, तू तो सब कुछ जानता है, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, तू सारे चीजों के नियंत्रण में है, इसलिए मैं अपने आप को तुझे पूर्णता से दे देता हूँ। So many people accusing him for something which he did not do. कई लोग जब उस पर दोष लगा रहे थे ऐसे किसी काम के लिए जो उसने किया ही नहीं। He always did good for those people. उसने हमेशा उन लोगों के लिए भला किया। All his life he was blessing those people, healing everybody, and did it so faithfully and so selflessly. उसके जीवन भर वो लोगों के लिए भलाई करते रहा, उन्हें चंगा करते रहा। इन सारी बातों को वो बिल्कुल विश्वास योग्यता से और निस्वार्थ होकर करते रहा। And when people were accusing him, he did not say many things like, I did so much good, I did this for you, I did that for you. He did not say anything. He just kept his mouth silent. और इसके बाद जब लोग उस पर दोष लगाने लगे, तब उसने ये नहीं कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। उस समय वो बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा। So that is why we need to meditate much on the life of Jesus.
इसी वजह से यीशु के जीवन पर हमें अधिक मनन करने की आवश्यकता है। There are so many things which we learn of his humility from so many things which occurred in his life when we read the Gospels. हम उसकी नम्रता के विषय में उसके जीवन में कई बातों को देखते हैं जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं। In 2 Corinthians 10:5 it says, "We are destroying speculation and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ." दूसरा कुरिन्थ 10:5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So here it says there are a lot of speculations and a lot of lofty things which can come in our minds to make us puffed up. और यहाँ लिखा है कि ऐसी कई कल्पनाएं हैं, कई ऐसी ऊंची बात है, ऊंचे विचार है जो हमारे हृदय में आ सकते हैं जिससे हम घमंडी बन सकते हैं। So we have to take every thought captive and bring it to the obedience of Christ. और हमें उस हर एक विचार को कैदी बनाकर उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। So like we fight against impure thoughts, against sexually impure thoughts, we also have to fight against the thoughts of pride and arrogance. और जैसे हम गंदे विचारों के विरुद्ध लड़ते हैं या यौन क्षेत्र के जो गंदे विचार है उनके विरुद्ध में लड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें घमंड और जो बलवा ये इन पापों के इन विचारों के विरुद्ध भी लड़ना है। And we have to take those thoughts and bring it down, and we have to say that I will not enjoy in this thought of pride. और हमें इन विचारों को लेकर उनको कैदी बनाकर नीचे लाना है और ये कहना है कि मैं इन घमंड भरे विचारों में आनंद नहीं करने वाला, उसका सुख नहीं लेने वाला। I'm not going to think about how well I did something and enjoy that. मैं ये नहीं सोचने वाला कि किसी काम को मैंने कितना अच्छा किया और उसी से मैं सुख या आनंद नहीं उठाने वाला। So that is the thought of pride where we sit back and say, oh, I preached so well, I did something so well, and I just enjoy that. क्योंकि ये भी एक घमंड का विचार है जहां मैं कहता हूं कि मैंने इतना अच्छा प्रचार किया या मैंने ये बात इतनी अच्छे से की और उसी विषय में सोचकर उससे मैं आनंद लेता हूं। Or somebody appreciated me, I just think about it and just meditate on it and feel little good. That is also a thought of pride. या कोई मेरी सराहना करता है और मुझे मेरी तारीफ करता है, मुझे वो बहुत पसंद आता है, उसी विषय में मैं सोचता हूँ, ये भी घमंड का एक मार्ग है। So I am just giving you some examples so that we can ask the Holy Spirit to make us not just to dig into our hearts, but just Holy Spirit should enlighten us when we have such thoughts. और मैं आपको ये कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि हम अपने हृदय को खोद के देखें, पर पवित्र आत्मा हमें अलग अलग समयों पर इन चीजों में अपनी रोशनी दे या प्रकाशन दे। And we work in this area. We cannot become perfect, or we are not saying that we are perfect. I'm not saying that I'm perfect, but work in that area. और हमें इस क्षेत्र में काम करना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस क्षेत्र में सिद्ध परिपूर्ण हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस क्षेत्र में सिद्ध हो गया हूं, पर हमें इस क्षेत्र में काम करते रहना है। When in the Corinthian church there were some people who said I am of Apollos, I am of Paul. There was a division there. और जब कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग कहने लगे कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, और जब इस वजह से उस कलीसिया में एक फूट आने लगी, अलगाव आने लगा। Paul did not have a secret desire or happiness that people who are on the side of me is more than the side of Apollos, something like that. He did not have that. पौलुस के हृदय में ऐसा कोई ऐसी गुप्त रीति से कोई उसको आनंद नहीं हुआ कि जो लोग मैं पौलुस का हूं कहने वाले लोगों की संख्या मैं अपुल्लोस का हूं इन लोगों की संख्या से अधिक है, ऐसा कोई विचार उसके हृदय में नहीं आया। In 1 Corinthians 3:6 and 7 it says, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. पहला कुरिन्थियों 3:6 और 7 में लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। So then neither the one who plants nor the one who waters is anything but God who causes the growth. इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। So this is the thought which we carry in our mind that I am nothing. Only God is the one who causes something to happen. और ये वो विचार है जो हम हमारे हृदय में लेकर घूमते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और परमेश्वर ही है जो कुछ कामों को होने देता है या करता है। आमीन। आमीन।